ਚੰਗੇ ਗੁਣਾ ਦੇ ਲਈ ਪਾਵਨ ਯੁਗ ਸਿੱਖ ਤੇ ਆਦਿ ਕਾਵਿਆ ਰਮਾਇਣ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖੀ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਦਿ ਕਾਵਿਆ ਰਮਾਇਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਗੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਰਾਜ ਸਵੀਕਾਰ ਤਾਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸਵੀਕਾਰ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਭਰਾ ਦੀ ਅਮਾਨਤ ਹੈ। ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਹੈ ਉਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਚਰਨ ਪਾਵਕ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਹੈ ਔਰ ਬਨਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੀਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਸੀਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਪਤਨੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਧਰਮ ਹੈ, ਕੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਇਸ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਆਦਿ ਕਾਵਿਆ ਰਮਾਇਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਰਤਨਾਕਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਦੀ ਨਗਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਅਯੋਧਿਆ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। 3 ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੈ। ਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਕਸ਼ਲਿਆ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਔਰ ਕਕਈ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਭਰਤ ਹੈ ਔਰ ਸੁਮਿਤਰਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਭਰਤ ਆਪਣੇ ਲਕਸ਼ਮਣ ਔਰ ਸ਼ਤਰੂਘਨ ਹੈ। 3 ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੈ, ਪਰ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਏਕਤਾ ਇਤਫਾਕ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਯੋਧਿਆ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਰਤਨਾਕਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਯੋਧਿਆ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਯੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ, ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਚਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਧਰਮ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜਾ ਪੱਗ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਸ਼੍ਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮਾਇਆ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਮਾਇਆ। ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਮਾਇਆ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਲੋਕ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਾਇਆ ਹੈ ਇਹ ਚੱਲ ਤੇ ਅਚਲ ਹੈ। ਇਹ ਚੰਚਲ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਪਰਮ ਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਪਾਸ, ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਪਰਮ ਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਪਾਸ ਨਾਮ ਧਨ ਦੀ ਦੌਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਰਤਨਾਕਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ जीवन की 4 अवस्था है, किसी में भी तू नहीं जागा है। जीवन की 4 अवस्था है, किसी में भी तू नहीं जागा है। गुरु सेवा से बचना सीख लिया, पूजा पाठ से हर पल भागा है। आँख मूंद के भक्ति की नहीं, तभी नाम के धन से खाली है। तो परम योगियों के पास नाम धन की दौलत होंदी है। जिस तरह साडे विच संत महापुरुष आए हैं, नाम की कमाई करते हैं, संसार दे सुख शांति की अरदास करते हैं, संसार के भले की अरदास करते हैं। इन्हां दा जीवन संतां दा जिहड़ा है वो एक परोपकारी जीवन है। इसलिए ऋषि नूं राजा दे नालों वड्डा समझिया जाता। राजा भी जिहड़ा है साडे देश की परंपरा रही है कि राजा भी जिहड़ा है वो अपनी राजगद्दी जो संत लोग आउंदे है वो अपनी राजगद्दी जिहड़ी है वो छड्ड दिंदे है और ऋषि के सत्कार दे विच, संत के सत्कार दे विच उन्हां नूं राजगद्दी ते बिठाया जाता, क्योंकि ऋषि जिहड़ा है वो राजा तो वड्डा है, क्योंकि वो संसार की सुख शांति की प्रार्थना करते हैं। जिहड़ी देश के विच व्यवस्थावां बनदियां हैं उन्हां व्यवस्था के लिए संत लोग, महापुरुष लोग जिहड़े है वो दिन रात अरदासां करते हैं, परमात्मा के निराकार परमात्मा के अगे अरदासां करते हैं, उन्हां दे अगे जिहड़ा है वो नतमस्तक हुंदे है। तो इसलिए भगवान वाल्मीकि महाराज जी दे कोल श्री रूपी पग है, क्योंकि उन्होंने कोल ऋषि भारद्वाज जी ने ज्ञान प्राप्त किया, राजा अरिष्टनेमी ने ज्ञान प्राप्त किया और 3 लाख अनुयायी होए भगवान वाल्मीकि महाराज के। 3 लाख 28 आश्रम भगवान वाल्मीकि महाराज के। वो आश्रम
उस टाइम ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਡੇ ਆਦੀਵਾਸੀ ਹੈ, ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੁਸ਼ੀ ਲਵ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਆਦੀਵਾਸੀ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਲਵ ਕੁਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ, ਜੋ ਲਵ सीता माता के घर पैदा होया और अपनी योग शक्ति के नाल भगवान वाल्मीकि महाराज ने कखां तो कुछ नूं पैदा किया। प्रभु रत्नाकर जी महाराज कहते कि ठाक कहे ठोस दलील हैं, वाल्मीकि करतार कुशा पे कपड़ा डालकर बालक किया तैयार। तो अपनी योग शक्ति के नाल भगवान वाल्मीकि महाराज ने कखां तो कुछ नूं पैदा किया। कुशा हाथ में लेके रचियो एक बाल, रंग रूप अनूप अनूप ताल। तो बाबा वडभाग सिंह की बाणी है जिहदे लिखा हुआ है कि गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जो विचित्र नाटक जिन्हों ने लिखा है वो भी इस गल की गवाही देंदे है कि भगवान वाल्मीकि महाराज ने लव तो बाद जो सीता माता के मन के आस पैदा हुई, उस आस मुराद को पूरी करने लई परमात्मा वाल्मीकि महाराज जी जिहड़े त्रैकालदर्शी है, जिहड़े तिन्ना कालों की गल जानते हैं, सीता माता के मन की गल नूं जान गए तो उन्होंने अपनी योग शक्ति के नाल बिल्कुल लव की शक्ल की तरह ही कखां दे विच प्राण पा के कुछ नूं प्रगट किया ते सीता माता नूं दो पुत्रां दी माता होने का गौरव प्रदान किया। इस तरह भगवान वाल्मीकि महाराज जी जिहड़े है वो इस दुनिया दे विच जगत गुरु आदि गुरु भी है। जिहड़े आदि मैंने आरंभ के गुरु भगवान वाल्मीकि महाराज जी जिन्हां दे विच कोलों महर्षि भारद्वाज जी ने ज्ञान प्राप्त किया, राजा अरिष्टनेमी ने ज्ञान प्राप्त किया। राजा अरिष्टनेमी जो उन्हें पूरे संसार को जित लिया, हुण पूरे संसार को जितण वाला भी मन की शांति चाहता है। मन की शांति कित्थों मिलनी है? वो जिन्हां दे कोल नाम धन की दौलत है। कहते कि नानक दुखी है सब संसार, सो सुखी जो नाम आधार, जिन्हों परमात्मा के नाम का आसरा मिले। हुण पूरी दुनिया को चक्रवर्ती सम्राट राजा अरिष्टनेमी जितन तो बाद जो खोज दे विच निकलिया है तो अनेकों वर्ष तपस्या की है, पर उन्होंने तपस्या के बदले राजा इंद्र के दूत उन्होंने कहते कि तेन स्वर्गपुरी के विच लैके जाना। तो उन्होंने जो स्वर्ग की व्यवस्था पूछी तो उस व्यवस्था को देख के उत्थे भेदभाव को देख के कहते कि उत्थे नहीं जाना, स्वर्ग च नहीं जाना। असी तो इस संसार तो मुक्ति पानी है। मोक्ष का क्या अर्थ है? अर्थ मोह का नाश। ये वर पाने भारद्वाज गए ब्रह्मा के पास, पूरी हुई न कामना दर दर करी तलाश, वाल्मीकि से मोक्ष पाके बुझी कबीरा प्यास। तो वाल्मीकि महाराज मोक्ष के दाता हैं। इस गल नूं जान के महर्षि भारद्वाज जिथों ज्ञान प्राप्त करते हैं उत्थे राजा अरिष्टनेमी पहुँचे है तो आश्रम के व्यवहार जाके जो खड़े हुए है तो नज़ारा बड़ा खूबसूरत देखा आश्रम का। उस आश्रम का बहुत खूबसूरत नज़ारा देखा। की देखते हैं? खग मृग विपुल कलोहल करही, बिरत वैर मुदित मन चरही। भगवान वाल्मीकि महाराज के आश्रम के सप अते नेवला, बाज अते चिड़िया, शेर अते बकरी को ही काट तो पानी पीते हैं। हुण मन दे विच ये ख्याल पैदा हो रहा है, मन दे विच विचार पैदा हो रहा है भी ये पशु पंछी है, जिहड़े हिंसक है, जिहड़े अपने तो कमज़ोर पशु पंछियों मार देंदे है, उन्हां दे मन दे विच प्रेम किद्दां पैदा होया, उन्हां दे मन का क्रोध किद्दां समाप्त होया, उन्हां दे मन की हिंसा किस तरह समाप्त हुई। तो इस तरह वो भगवान वाल्मीकि महाराज के आश्रम के अंदर प्रवेश करते हैं। तो जो प्रवेश करते आश्रम के अंदर तो उन्होंने कन्ना दे विच भगवान वाल्मीकि महाराज की बाणी जो पैंदी है तो वो उस बाणी के नाल उन्हों का मन जिहड़ा है बिल्कुल शांत होना शुरू हो जाता है। बिल्कुल मन जिदा जिदा नज़दीक जाते हैं, मन के विच जिहड़े विचार उठ रहे हैं वो विचार जिहड़े उठनों बंद हो रहे हैं, मन शांत हो रहा है। तो उस वेले जो भगवान वाल्मीकि महाराज के नज़दीक पहुँचे है तो फिर वो कहते हैं कि भगवान वाल्मीकि महाराज की मधुर तो मिठी बाणी का असर है कि जिहड़े पशु पंछी है उन्हों का भी सुभाव बदल गया। मुझ में भी जाति घमंड ना है, जाति वर्ण कुल गोत्र ना है,
तेरे दरबार में सब है समाना, शेर बकरी की घाट पिलाना। तो ये शब्द की व्याख्या इसलिए की गई है कि लोग अजकल दयावान शब्द को बड़ा प्रेम करते हैं। बड़े लोग देखते हैं कि साडे लोग जिहड़े है ना बिना विचार दे किसी भी शब्द नूं नवा क्रिएट होया उन्होंने ले लिया। तो दयावान शब्द का एको ही अर्थ है, भगवान शब्द दे विच 5 गुण ते 6 शक्तियाँ, ऐश्वर्य, धर्म, श्री, ज्ञान, यश ते वैराग्य। भगवान वाल्मीकि महाराज का मैं थोड़ी गल करके समाप्ति करनी है कि यश पूरी दुनिया के इसलिए फैलिया क्योंकि उन्होंने रामायण ते योग वशिष्ठ की रचना तो अलावा अक्षर लक्ष्य ग्रंथ लिखा है जिहदे विज्ञान के तरीके दसे हुए हैं। इस संसार को गणित देने वाले, इस संसार को विज्ञान देने वाले वाल्मीकि महाराज है। तो इस तरह वो जिहड़े है ऐश्वर्य, धर्म, श्री, ज्ञान, ज्ञान के दाता है। वाल्मीकि महाराज वर्गा ज्ञान जिहड़ा है दुनिया भर के विद्वान इस गल को मानते हैं कि किसी के कोल नहीं। उन्होंने ज्ञान के विचों ही सारी दुनिया का ज्ञान निकलिया है। कहते अज तक जो होया दुनिया से वो लिखिया विच रामायण दे, अगे भी उही होना है जो लिखिया विच रामायण दे। मिलिया है हर एक रागी नूं संगीत ते गीत रामायण चो, कवियां के दिलों में जागी है कविता की प्रीत रामायण चो। इसलिए भगवान वाल्मीकि महाराज जी ने ये गल संसार को कही कि ज्ञानी ही सुखी है, ज्ञानी ही बलवान है, ज्ञानी ही जीवत है। इसलिए ज्ञानी बनो क्योंकि संसार का मूल आधार ज्ञान ही है, भगवान वाल्मीकि महाराज ने कहा। इसलिए भगवान वाल्मीकि महाराज का जश पूरी दुनिया के फैल गया। इस तरह भगवान वाल्मीकि महाराज जी वैरागी किद्दां होए कि वो वैराग की गल जिहड़ी आई है कि लव कुश द्वारा जो सैना नूं मार दिता गया, तो जे भगवान वाल्मीकि महाराज संसारी होंदे तो वो राज जिहड़ा सी रामचंद्र दा लै सकते सी, पर वो परम वैरागी सीगे, उन्होंने राज नहीं लिया। लव कुश ने मार दी सैना, भगवान वाल्मीकि महाराज की कृपा के नाल सीता माता की फरियाद से वाल्मीकि महाराज ने सैना को जीवित भी किया है। बहुतियां विचारां आपां फिर कभी मौका मिलेगा तो जरूर तुहाडे नाल करांगे, ते तुसीं बड़े प्रेम सत्कार दे नाल साडी इस विचार को सुनिया है। आप सब दे विच हाज़र नाज़र परमात्मा दे अगे असीं नमन करदे हां और सारे धर्म प्रेमियों को जय वाल्मीकि।